Good morning, 11th standard. Today we will discuss about the orbitals and quantum numbers. So as all of us we know that there are the large number of quantum number possible in an atom. ठीक है बच्चे? So if we are talking about these orbitals, so these orbitals can be distinguished in an atom with their size, shape and orientation. Or if the orbital is of a smaller size, that means the probability of finding the electron is maximum near the nucleus. And similarly we can say that the shape and orientation also means that there is more probability of finding the electron comparatively to the others one. ठीक है. और each orbital जो होती है that is distinguished or designated by the three symbols, that is N for principal quantum number, L for your azimuthal quantum number, and ML for that is for magnetic quantum number. ठीक है बच्चा? So this is all about your quantum numbers, and now one by one we are going to discuss about the quantum numbers. So as all of you know that the first quantum number is the principal quantum number. ठीक है, ये देखिए, just one. Okay, now in this quantum number, as we have discussed in the previous one lecture also, that this is denoted by n, और इसकी values जो होती हैं वो n is equals to 1 to 3 हो जाएगी. और basically ये जो है determine करता है size and large extent of energy को. ठीक है, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एटसेट्रा, तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज ऑफ द ऑर्बिटल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन n. एंड इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल. ये शेल को आइडेंटिफाई करता है बेटा. एंड द number of allowed orbital that goes on increasing, and it increases by n square. किससे बढ़ती है? n square, जबकि n जो है वो सिंगल शेल को दिखा रहा है. जैसे n अगर 1 है तो शेल k होगी, n is equals to 2 है तो शेल l होगी, if n is equals to 3 then the shell will be m, and so on. And the size of an orbital increases with increase in number of n. ठीक है, या हम कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटम नंबर. और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज द साइज ऑफ n that goes on increasing, then that means that what does that mean? That means that electron is kept away from the nucleus of an atom. ठीक है जी. So here we can say that, and next we can discuss about the that is azimuthal quantum number. So in this one it is denoted by the L symbol. ये L से denote होता है आपका, और इसे हम orbital angular momentum और subsidiary quantum number भी कहते हैं. Again I am repeating, it is also known as the orbital angular momentum or subsidiary quantum number. Basically it defines the three-dimensional shape of the orbital. किसी भी orbital की 3D में कैसी shape होगी वो बताता है. For given value of n, L की values जो होती हैं that is from 0 to n minus 1, ये भी हम discuss कर चुके थे. Like if n the possible values of L that can be 0, 1, 2 up to n minus 1. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल पे कहूँ n is equals to 1 है तो वैल्यू ऑफ L is only 0. ठीक है जी, वैल्यू ऑफ L कितनी हो जाएगी? सिर्फ 0 होगी. और अगर मैं बोल रही हूँ n जो है आपका वो 2 है तो इन दैट वन केस वैल्यू ऑफ L is equals to 0, 1 होगी. 3 में वैल्यू ऑफ L जो होगी वो 0, 1, 2 हो जाएगी. तो each सब शेल जो होगी that consists of one or more subshells or sub levels, and these number of subshells in a principal shell is equals to the value of n. ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, तो फॉर एग्जाम्पल
इन द फर्स्ट शेल n इज इक्वल्स टू, यहाँ से कर लेते हैं हम, इस पे आ जाते हैं हम सीधा इस टेबल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो शेल्स आपको वो कर रहा है। ये वैसे हम समझा चुके हैं, बट स्टिल अगेन आई रिपीट इट वंस मोर। जैसे n अगर आपका 1 है तो l क्या होगा, 0 होगा, और अगर 0 है तो उसकी नोटेशन होगी 1s, ठीक है। अगर n जो है 2 है तो आपकी वैल्यूज जो बन जाएंगी बेटा, वो दो बनेंगी, दो बन जाएंगी, एंड दैट कैन बी क्या क्या, 0 एंड 1, है ना। ये दो बनी, तो 0 के लिए ये बन जाएगी 2s, और 1 के लिए बनेगी 2p। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, n इज इक्वल्स टू 3, तो वैल्यूज देयर विल बी 3, 0 l की वैल्यू 3 हो गई, 0 1 2, जब 3 0 पर है तो नोटेशन है 3s, जब 3 के साथ 1 लगेगा तो वो बनेगी 3p, और जब n 3 है और l क्या है, 2 है, तो वो बन जाएगा 3d। इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली अगर n जो है हमारा क्या है, 4 है, तो वैल्यूज बनी 4, 0 1 2 3, 4 के साथ 0 पे 4s, 4 के साथ 1 पे 4p, 4 के साथ 2 पे 4d, और 4 के साथ f पे 4f, ठीक है। क्लियर हुआ? सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज विच गिवन बाय द l, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं किस पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय m, ठीक है, m से डिनोट करते हैं, and basically it gives information about spatial orientation of orbital, कि वो x एक्सिस पे कैसे मूव कर रहा है, y एक्सिस पे कैसे मूव कर रहा है, z एक्सिस पे आपकी ऑर्बिटल कैसे मूव कर रही है, that is told by the magnetic quantum number, and that's why coordinate axis पे कैसे वो आपके ओरिएंटेशन ऑर्बिटल दिखा रही है वो होती है, एंड फॉर दैट देयर इज द वैल्यू 2l प्लस 1, ठीक है। कितनी होती है, 2l प्लस 1 होती है, और हम ये भी कह सकते हैं ml जो होती है दैट इज फ्रॉम -l टू 0 टू +l, जितनी भी l की वैल्यू होगी उसकी -l से 0 से +l तक की होती है। क्लियर है? सो अगर l 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी, है ना, सिर्फ 0 रह जाएगी। लेकिन एम एल अगर क्या है, और देयर विल बी द एम एल कितनी हो जाएगी, 0, और 2 इंटू 0 प्लस 1 1, तो एस ऑर्बिटल आएगी एल इज इक्वल टू 0 में। लेकिन अगर एल 1 है तो एम एल क्या हो जाएगी, -1 0 एंड +1, है ना। एल अगर 1 है तो -1 0 +1, 3 वैल्यूज हो जाएंगी। ऐसे ही एल अगर 2 है तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 1 एंड देन 2, ठीक है बेटा। तो ये हमारी 5 ऑर्बिटल देगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि एम एल की वैल्यू कितनी हो गई। नाउ जस्ट हैव अ लुक हेयर, एम एल की वैल्यू आपकी चली जाएंगी यहाँ पर से, अगर एल जो है 0 है तो एस जो होगा 1 होगा, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल एम एल की वैल्यू 1 होगी। अगर एल जो है वो 1 है तो सबशेल की नोटेशन p होगी, और एम एल की वैल्यूज 3 हो जाएंगी, -1 0 1। अगर एल जो है वो 2 है तो सबशेल की नोटेशन d होगी, और कितनी हो जाएंगी, वैल्यूज 5 हो जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2। ऐसे ही एल अगर 3 है तो सबशेल नोटेशन f होगी, और वैल्यूज बन जाएंगी 7, ठीक है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ऐसे ही 4 में और इंक्रीज कर जाएगी बेटे। सो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लाइक 4 में नोटेशन हो जाएगी g, और वैल्यूज हो जाएंगी 9 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। ऐसे ही अगर वैल्यू ऑफ एल 5 है तो वैल्यू नोटेशन बनेगी h के साथ, और वैल्यू बनेगी 11। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन S, ये ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज बेसिकली इट डिफाइंस इट्स एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। बट ऑल दीज क्वांटम नंबर्स, हमने ये 3 चीजें कर ली, बट ऑल दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा नहीं पता चल पाता इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पता चल जाएगा, बट इफ देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, then definitely we will not be able to explain this, and for that we are using the electron spin or spin quantum
number we can say. ठीक है. So for that there is electron spin quantum number, which is the tell us about the electron spin around its एक्सेस. जैसे कि सन के नियर अबाउट जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक्सेस पे भी मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिवॉल्विंग इन देयर ओन एक्सेस, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस या डिफाइंड with the help of what, with the help of electron spin quantum number. ठीक है. So basically बेटा there are the two spin states of the we can say the electron. हमारी दो होती हैं, that is plus half and minus half. spin up plus half के लिए, spin down minus half के लिए यूज की जाती है. और ये दोनों अपोजिट स्पिन्स होती हैं. इनका मीनिंग बेसिकली यही होता है कि एक क्लॉकवाइज जाएगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगी. तो अगर हम बात करें अब, और ये हर एक के लिए होगी. जैसे कि अगर एस में है तो देयर विल बी द टू स्पिन, वन इज प्लस हाफ, वन इज माइनस हाफ. ठीक है. स्पिन क्वांटम नंबर हर एक के लिए टू टू होगा, हर एक के लिए, चाहे वो जीरो में लाई कर रहा है, चाहे वन में लाई कर रहा है, चाहे टू में लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है, हर एक के लिए कितनी कितनी होंगी, टू स्पिन्स विल बी देयर. याद रहेगा कितनी स्पिन्स रहेंगी, टू स्पिन्स विल बी देयर फॉर एवरी क्वांटम नंबर. ठीक है जी. वो हर एक के लिए दो दो स्पिन होंगी. Alright, so this is all about your quantum numbers, and तो अगर हम sum up करते हैं तो यही हमारा बेटा sum up आएगा कि n जो है वो डिफाइन करता है शेल को, साइज के ऑर्बिटल को और एनर्जी को. अगर L की बात करते हैं तो L आइडेंटिफाई द सबशेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. और ML की बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, सो इट डेजिग्नेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है. And if we are talking about the MS, then it gives us the spin of, tell us about the spin of the electron. Fine bacha. Now there is a numerical here. What is the total number of orbital associated with the principal quantum number? N is equals to 3. तो n is equals to 3 में L की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2. ठीक है जी, यही होगी. और 0 1 2 हो जाएगी. तो 1 3s ऑर्बिटल के लिए ये बन गई आपकी 3 L0 ML0. 3p के लिए बनेगी आपकी वैल्यूज अलग, और 3d के लिए बनेगी, यही बनेगी ना. 0 के लिए 3s, ये 1 के लिए 3p, और ये 2 के लिए 3d. तो इन सब के टोटल काउंट कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, 9. और n का स्क्वायर भी 3 स्क्वायर 9. ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, SPDF नोटेशंस है. डिस्क्राइब ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. n2 है तो माने 2 रहेगा, L1 है तो L जब 1 होता है तो क्या होती है, P. सो इट विल बी 2p. n इज इक्वल्स टू 4, L इज इक्वल्स टू 0, तो 4s हो गई. 5n है और L 3 है तो इट इज 5f. and n is equals to 3 and L is equals to 2, so it will becomes 3d. Clear है बच्चे? Okay, so this is all about the problems which can be type of the problems which can be asked related to the quantum number. And there are the there are the questions given on the back exercise also, which you have to do today. आपको आज की डेट में करना है. ठीक है बेटा. So that will be your homework. All right, and just have a look. मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से करना है. Just 1 minute. Yeah, there is the first question, that is question number 25. Electron is one of the 3D orbital. So give the possible values of N, L and Mi for this electron. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 25 आप करोगे कि N जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, ऑब्वियसली 3D है,
और L जो है वो हमारा क्या है, दैट L इज इक्वल्स टू 3d ऑर्बिटल है, तो L हमारा क्या होगा और ML क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 1 है 3d ऑर्बिटल का, किसमें है आपका 3d ऑर्बिटल में है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S के लिए 0, P के लिए 1, तो D के लिए 2, तो 3D में ये क्या हो जाएगी 2, L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, तो MI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, यही बनेगी, तो ओनली वन वैल्यू कैन बी टेकन फ्रॉम दिस वन, एक वैल्यू ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, कोई भी एक ले लेंगे, तो दैट विल बी द आंसर। इसके बाद उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट, सो ऑब्वियसली जी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बेटा, तो एन एल और एम रेंजिंग कितने से कितने तक हो जाएंगे, 0 to n-1, तो इट मीन्स L इज इक्वल्स टू 4, मिनिमम वैल्यू N की कितनी जाएगी, 5 जाएगी, ठीक है, सो दैट यू हैव टू डू, question number 24, 25 and 28 question number you have to do today date, 29, 30, 31, ये सारे questions 31 तक आज आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में, ओके बेटा, so thank you to all of you and just do the practice of these questions.